Jay Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th, subject Maths. So, we have already started chapter 12, representing information in graphical form. Okay, so before starting the next topic, I will revise what we studied till now. In the recall exercise, we see what is data. The information presented is called the data. Okay, so when we represent it in the tabular form, that is means we have making the three tables, which is of one of object, class, whatever it may be. Then second is of tally marks, and third is of numbers. So when we represent in such a form, it is called tabular form. Next thing we study about the pictograph. The data representing in the form of picture is called the pictograph. Okay. Now the question answers also we have seen on the pictograph. The third topic we studied yesterday is the bar graph. The information or the data which is represented in the form of bars is called the bar graph. In the bar graph, this vertical line is called y-axis. This horizontal line is called x-axis. Y-axis is equally divided in some intervals, and the distance or number is written here. Then x-axis also divided in equal intervals, and the names of days or names of the students, okay, it is our name of the subject, whatever it may be, is written here. The width of each bar is same or equal. Okay, the distance between two bars is always equal. Get these important points? Fine. Now we will study the next topic, that is circle graph. Okay, so you can see in book, otherwise you can see on screen also. The table shows a number of flowers sold in a day. Kind of flowers are lotus, rose, orchid, jasmine, and total flowers. Then number of flowers: lotus 20, rose 10, orchid 5, jasmine 5. Total flowers sold are 40. Now see, first of all I will read this and I will explain it. Okay. Data in the table can be represented using circle graph. Hence, the whole circle represent 40, the total number of flowers sold in a day. अब देखो, जो डेटा गिवन है वो हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? सर्कुलर ग्राफ में. ठीक है. अब दिस होल सर्कल मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स. तो कितने फ्लावर्स टोटल है? 40. मीन्स दिस होल सर्कल रिप्रेजेंट 40 फ्लावर्स. गेट इट? नेक्स्ट, अब देखो लोटस कितने सोल्ड हुए हैं? 20. लेकिन ये 20 किस में से है? टोटल में से. तो हम इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना. टोटल का फ्रैक्शन कितना है? लोटस हो गए 20 और टोटल हो गए 40. तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1/2. किससे डिवाइड किया हमने? 20 से. 21 जा 20, 22 जा 40. सो इट इज 1/2 ऑफ द टोटल. 1/2 मीन्स हाफ, है ना. तो आधा पार्ट है वो किससे हम कलर करेंगे? ग्रीन कलर से. और यू कैन हियर लाइन ऑल्सो. आप कलर भी कर सकते हो या फिर उसको डॉटेड या लाइन से भी लाइन्स भी कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, अब देखो रोज. रोज कितने सोल्ड हुए हैं? 10. कितने से? 40 में से. सो 10 आउट ऑफ 40 वेर सोल्ड. सो 10/40, इट इज 1/4 ऑफ द टोटल. ओके. सो सी हियर 1/4. ओके. 1/4 है, मतलब ये पूरा जो सर्कल है उसका 1/4, इट इज 1/4. देन ऑर्किड्स. ऑर्किड्स आर 5/40, मतलब 5 में से 40, दैट इज 1/8 ऑफ द टोटल. सो 1/8. सी हियर, ये हाफ हो गया. हाफ का हाफ मतलब 1/4, और 1/4 का भी हाफ कितना होता है? 1/8. तो इतने क्या सोल्ड हुए हैं? ऑर्किड्स. सो हियर ऑर्किड. अब बचा क्या? जस्मिन. तो जस्मिन देखो कितने सोल्ड हुए हैं? 5/40, दैट इज 5/40, दैट इज 1/8 ऑफ द टोटल, दैट इज 1/8 ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट दिस. गेट इट एवरीवन? अब देखो कैसे हमने ये सर्कल रिप्रेजेंट किया. तो सर्कल ड्रॉ करना मुझे लगता है सबको आता होगा, राइट? तो पहले हमने क्या किया? गिवन डेटा रिटर्न किया.
तो इसमें से हमें क्या मिला कि टोटल कितना है, ये जरूरी है. व्हाट इज द टोटल, वेदर इट मे बी टोटल मार्क्स, टोटल फ्लावर्स, टोटल पेन्स, वॉट एवर इट मे. ठीक है. अब हर कोई ऑब्जेक्ट इसमें से कितना है उसका हमने फ्रैक्शन निकाला. ओके. उस फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग उस फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया. ओके. और उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने इस सर्कल के पार्ट्स किए. जैसे लोटस कितना था, 1/2. 1/2 मतलब आधा, है ना. तो इसका आधा पार्ट हमने लोटस से लिख लिया, है ना. तो हम इसका अलग कलर देंगे, राइट. देन नेक्स्ट रोज 10/40. तो इसको हमने सिंप्लीफाई तो किया तो कितना आया, 1/4. अब 1/4 ऑफ सर्कल. अब देखो 1/2 ये हो गया, और हाफ का हाफ कितना होता है, 1/4 होता है. तो 1/4 पार्ट हमने रोज लिखा, है ना. तो फिर इसको हमने पिंक कलर दे दिया. यू कैन गिव एनी कलर. गेट इट. नेक्स्ट रोज के बाद आता है ऑर्किड. अब ऑर्किड कितना है, 5/40. तो इसका फ्रैक्शन में आएगा 5/40. तो इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 5 1 the 5, 5 8 the 40. इट इज 1/8 ऑफ द टोटल. सो इट इज 1/8 ऑर्किड. ओके. देन जस्मिन देखो 5/40, 5/40 दैट इज 1/8 ऑफ द टोटल. तो वो कितना हो गया, ये आ गया समझ में. नेक्स्ट अब सेकंड वाला भी हम क्या करेंगे, सर्कल ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. पहले एग्जांपल समझ ले. ओके. कंप्लीट द सर्कल ग्राफ यूजिंग द डेटा इन द table. So days are given and ice cream of sold are also given. Monday, Tuesday, Wednesday and total 3 days का है यहाँ. तो 3 days में कितना सोल्ड हुआ आइसक्रीम, ये टोटल यहाँ दिया है. ठीक है. अब देखते हैं आइसक्रीम सोल्ड. मंडे को कितना सोल्ड हुआ था, 36. ट्यूसडे को 9. वेनेसडे को 27. अब टोटल आइसक्रीम कितना सोल्ड हुआ है, 27, राइट. अब ये पूरा सर्कल कितना रिप्रेजेंट करता है, 72. इट इज नॉट 27, आई एम सॉरी, इट इज 72. सो पूरा सर्कल कितने आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करता है, 72 को. ओके. अब देखो मंडे को कितना आइसक्रीम सोल्ड हुआ, 36. किस में से, 72 में से. सो 36/72. 36/72 कितना आएगा, 1/2 ऑफ टोटल. तो ये जो मैंने पिंक कलर से कलर किया है ना, ये क्या है, मंडे का आइसक्रीम सोल्ड. सो आई थिंक यू कैन सी, अदरवाइज इट इज वेरी लाइट. ओके. सो ये जो कलर दिख रहा है ये सारा क्या रिप्रेजेंट करता है, आइसक्रीम सोल्ड ऑन मंडे. ओके. चलो नेक्स्ट ले ले. ट्यूसडे को कितना आइसक्रीम सोल्ड हुआ, 9. कितने में से, टोटल कितना था, 72. सो 9/72. अगर 9 और 72 को हम 9 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 1/8, है ना. तो फिर देखो ये हो गया आधा. तो आधे का आधा 1/4 होता है. फिर उसका हम आधा करेंगे तो वो क्या हुआ, 1/8. सो ट्यूसडे को क्या हुआ, 1/8. मतलब द कलर विच रिप्रेजेंट द ग्रीन कलर शोज दैट द आइसक्रीम सोल्ड ऑन ट्यूसडे. ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है वो क्या शो करता है, आइसक्रीम ट्यूसडे को कितना आइसक्रीम सोल्ड हुआ वो दिखाता है. ठीक है. अब वेनेसडे का देखो, वेनेसडे को कितना आइसक्रीम सोल्ड हुआ, 27. कितने से, 72 में से. तो 27/72. 27/72. ओके. सो हम इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/8 ऑफ द टोटल. तो देखो 3/8 मतलब 1/8 3 टाइम्स. देखो ये जो पार्ट है ना, सी हियर 1 2 3, है ना, ये रिप्रेजेंट करता है 1/8. सो ये सारे इक्वल है ना. तो ये 1/8 1/8 एंड 1/8 हो गया ना, 3/8, है ना. सो दिस ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट द आइसक्रीम सोल्ड ऑन वेडनेसडे. ओके. क्लियर सबको. चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करें. फाइन. चलो आई एम सॉरी. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. The number of students in each class in a school is class 1 30, class 2 42, class 3 40, class 4 38 and class 5 45. Present this data in a tabular form. अब हमें tabular form में ये इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है. tabular form सबको याद है ना, एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने एक्सप्लेन किया था. ओके. सो वी हैव टू मेक द 3 कॉलम्स.
फर्स्ट में आएंगे क्लास, सेकंड में आएंगे टैली मार्क्स और थर्ड में आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।